Okay, welcome back to the session. Look, already we had a few classes. So, what would be my target to pace half our classes? हम लोग थोड़ा अब स्पीड बढ़ाएंगे. शुरू के क्लासेस थे तो I'm audible clearly. I hope all of you can listen. But all of you can listen. Please response. Clearly सुनाई दे रहा है ना सबको? ओके. सो जो मैं बोल रहा था कि शुरुआत वाले कुछ क्लासेस थोड़ा समझने समझाने के लिए मैं थोड़ा सा स्पीड कम करके चल रहा था, पर नाउ वी विल मूव बैक टू आवर एक्चुअल स्पीड ऑफ द क्लास, हाउ इट सपोज टू बी. आपको क्वेरीज होंगे, जो भी डाउट्स होंगे आप पूछते रहना, हम क्लियर करेंगे और साथ में हम क्लास चलाते रहेंगे. ओके, सो what was the last one we did? Who will tell me? Last हम लोगों ने क्या किया है? I think we will start with perfect tense. Continuous we did. Yes or no? From perfect we will start. Present continuous we will start. Okay, done. From continuous we will start. So I think the base construction for continuous we did on that day, right? Right? The base construction for continuous we did on that day, right? Okay. So what was the base construction for continuous tense? It was subject plus be plus me plus ing plus object. That you can remember? That you can remember? All of you? But all of you can remember? Response fast. All of you can remember this one? Good. So, present continuous, what should be the construction? You know that to change the tense of the sentence, we need to change the finite verb. And which one is finite verb over here? The verb that comes immediately after the subject. What is coming immediately after the subject is be, right? Be जो है ये subject के बाद आ रहा है, तो ये हमारे लिए क्या है? Finite verb है. तो हमें जब tense के चेंज करना है, टेंस बताना है, तो फिर हमें इस बी वर्ब के ऊपर बस चेंज कर देंगे, तो फिर हमारा पूरा टेंस चेंज हो जाएगा. व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ बी वर्ब इन प्रेजेंट टेंस? यू कैन रिमेंबर विद द लास्ट टेंस, दैट इज एस प्लस एम और इज और आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. व्हाट आई डिड, सिंपली मैंने क्या किया, ये बी को हमने इसके प्रेजेंट टेंस के फॉर्म से रिप्लेस कर दिया. सो वी गॉट ऑल. नाउ वी विल आई वी यू ही दे. आई एम गोइंग टू स्कूल. वी आर going to school. You are going to school. He is going to school. They are going to. Right? Clear? Clear everyone? I think in our last class we did this thing, right? You are already having this in your notebook. Yes or no? आपके नोटबुक में ये है ना? हाँ?
Look, one thing you can do simply. If I ask something now, if you want to say yes, simply do this thing on your screen. Okay, so I can understand. Okay, yes, you understood the thing. Simply do this thing. Okay, इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ आप yes बता रहे हो. Okay, so for past tense, what we will do? For past tense, what we will do? We will put the past form of be verb. Past form of be verb, that is was a verb. तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे सब्जेक्ट के बाद या तो was या तो was. सब्जेक्ट के बाद was या was आ जाएंगे. तो I was going to school. We were going to school. You were going to school. He was going to school. They were going to school. ठीक है? Done. Copy it first. Copy it first. Where is Shabhyata Barma, Akshit Gupta, श्रुति, ऐश्वर्या, अंकित टंडन, वंश शर्मा, करमजीत कौर, रक्षम, नवजोत, अंकित टंडन, वंश शर्मा, माहिर भाट, जेसिका सिंह, गुरमीत कौर, केशव, निखिल, अकुल, नीलांशु रंजन, अक्षत, मानव चोद, आर्यन महाजन, प्रांजल, हर्ष टंडन. कहाँ हो बेटा आप लोग? You always keep your video on. Clear? Past one is done. Done past one. Past one हो गया है. Past copy हो गया है कि नहीं? बस एक तो हुआ है, बाकी दो. Past is done or not? Good. Good. Now we will move to future one. Okay? Future one, same thing, only we need to change it in phrase. Future form, what are the forms of future? What are the forms of future in? What are the forms of future of be verb? Forms of be verb in future tense will be, what is the other one? Pretty correct. दूसरा कौन सा है? Shall be, will be. Very good. It is shall be or will be. तो हम क्या करेंगे? Shall be or will be. Shall be या will be लगेगा. आई बात shall लगना है. We के बाद भी shall लगेगा. You के बाद will लगेगा. E के बाद will लगेगा. A के बाद. ठीक है? Done. Copy it first. मेरी ऑडियो आप लोगों को क्लियर सुनाई दे रहा है ना? वॉइस क्लियर सुनाई दे रहा है ना सबको? इज इट क्लियर? वॉइस क्लियरली सुनाई दे रहा है ना सबको? रक्षम, आई थिंक आपके माइक में कोई प्रॉब्लम है. आप अपना जो वॉल्यूम है ना उसको म्यूट कर लो, उसी से डबल सुनाई दे रहा है. Done. Where is Ankit Tandon? Ankit, why you are not putting your camera on? बेटा क्लास 1 घंटे की क्लास है, सबको पढ़ाई करना है.
सरबजीत, नवजोत सिंह, केशव, नमन गुप्ता, आर्यन महाजन, लक्ष्य शर्मा, next we will move to perfect one. This one is done. Is copied? Is copied? Copied, good. Copied all? Shall I wrap it? Done. Now we will move to perfect. Okay? In the same way, write down point number 1. Point number 1, write down to write any sentence. To write any sentence in. To write any sentence in the form of perfect tense. To write any sentence in the form of perfect tense. Have verb, the helping verb auxiliary have, H-A-V-E, verb to have verb needs to be used. Have verb needs to be used. Done? Have verb needs to be used. Done? Number 2, have is an auxiliary. Have is an auxiliary. Have is an auxiliary. Akul, why we use shall with first and second person, will with third person? Beta, that detail I told you in our previous class. I told you people that we will do in detail shall, use of shall or will in modal auxiliaries. ठीक है, जब हम लोग modal पढ़ेंगे तब shall और will की डिटेल यूज पढ़ेंगे. अभी के लिए इन जनरल आप ये जान के रखो, I और V के बाद shall लगता है, बाकियों के बाद will लगता है. पर उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है. I के बाद भी will लग सकता है, V के बाद भी shall लग सकता है. But this should be the use of modal auxiliary. जब हम लोग modal पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे. ठीक है अकुल? ठीक है? Okay, बेटा. Number 3 is, you already know the rule that the auxiliary should always be placed in between the subject and the main verb. The auxiliary is placed in between the subject and the main verb. Right? It's quite irritating, you know, that you turn your cameras off and you are sleeping or doing what I don't know. We are having 37 people present in our class. I think only 12 or 13 are attending the class. What about the others? Where the other students are, God knows. If you are attending the class properly, then what is your problem to put your camera on? And it is not possible for me to look onto the screen and find it out that who is putting off and on. We need to continue the class. मैं क्लास में पढ़ाऊँ आपको या ये दिख के रहो कि किसने ऑन किया है किसने ऑफ किया है? It's not done. Be honest to yourself. Number 3, you did that the auxiliary should be placed between the subject and the main verb. And what is the fourth one, the most important one? The fourth one. If a verb, write down, if a verb is preceded with have, any form of have verb, not preceded with have, just instead of preceded with have, write down any form of have verb. It can be has, have, had, shall, or will have, कुछ भी हो सकता है.
If a verb is preceded with any form of have verb, if a verb is preceded with any form of have verb, comma, it changes into its third form, changes into its third form. Done? If a verb is preceded with any form of have verb, it changes into its third form. ठीक है? I'm telling you from the beginning what does those mean. नंबर 1 जो लिखे थे रूल, उसमें हम लोगों ने क्या लिखा कि आपको परफेक्ट टेंस में कोई भी सेंटेंस अगर लिखना है, अगर परफेक्ट टेंस में कोई भी सेंटेंस आपको लिखना है तो आपको क्या यूज करना है, एज ऑक्सिलरी हैव वर्ब यूज करना है। इतना तक क्लियर है। नंबर 2 में हम लोगों ने क्या लिखा है कि हैव वर्ब किस तरीके का वर्ब है, यू ऑलरेडी नो, ये ऑक्सिलरी है। नंबर 3 में हमें क्या पता चला कि ऑक्सिलरी जो है वो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में लग रही है, आपको ऑलरेडी पता है। और नंबर 4 में क्या आता है कि कोई भी वर्ब के आगे अगर हैव वर्ब लगता है, कोई भी फॉर्म लगता है, हैव वर्ब का कोई भी फॉर्म, एनी फॉर्म ऑफ हैव वर्ब अगर लगता है तो फिर क्या होगा, वो जो मेन वर्ब है जिस वर्ब के आगे लगा है उस वर्ब का फॉर्म क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगा, V3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया एवरीवन, ऑल अंडरस्टूड? ये चारों पॉइंट्स सारे लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? किसको नहीं आया? सबको आ गया? चारों पॉइंट सबको समझ में आ गया? और शैल आई रिपीट? देखो एकदम बहुत जल्दी से एक बार बता देता हूं। पहला पॉइंट क्या है कि हैव वर्ब में आप सॉरी परफेक्ट टेंस में आपको लिखना है तो हैव वर्ब यूज करना है। ठीक है, कोई भी फॉर्म हो सकता है अकॉर्डिंग टू द टेंस इट शुड बी। ठीक है, नंबर 2 में हैव क्या है, ऑक्सिलरी है। नंबर 3 में ऑक्सिलरी कहां पे यूज होता है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में यूज होता है। और नंबर 4 में कोई भी वर्ब के आगे अगर हैव वर्ब लगते तो वर्ब क्या हो जाएगा, उसके थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, देखो हम लोग उसी हिसाब से करेंगे। What was our basic construction? It is S, B and O. S, B and O. अब हमारे क्या पता चला कि परफेक्ट में लिखना है तो क्या लगेंगे, हैव लगेंगे। हैव कहां पे यूज होता है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सिलरी है। ठीक है ना, और जहां पे वर्ब के आगे हैव लग गया तो फिर वर्ब क्या होता है, इसका थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। द वर्ब चेंजेस इनटू इट्स थर्ड फॉर्म। ठीक है, यही आप लोगों ने लिखा ना रूल्स, रूल्स में आप लोगों ने यही लिखा है कि नहीं? Who is this? You Sabhyata Verma, I am not getting your noise, so don't talk. आप किससे बात कर रहे हो क्लास के बीच में? डन, सब लोगों को समझ में आ गया? अब हम लोगों को क्या पता है, to change the tense of the sentence we need to change the finite verb. Which one is the finite verb over here? Subject plus have plus V3 plus object. यही है ना, subject plus have plus V3 plus object. इसमें finite कौन सा है? केशव is correct. Who else? बाकी लोग? केशव करेक्ट है, कृतिका करेक्ट है, आकृति करेक्ट है, अक्षित also correct, योगिता correct, moreover you understood that have is the finite one. Why have is the finite one? Because it comes immediately after the subject. ठीक है ना, have verb जो है ये finite है क्योंकि ये subject के immediate बाद ही आ जाता है। तो फिर to change the tense of the sentence we need to change the form of have verb only. Yes or no? And you know already the forms of have verb. What are those? Has have in present tense, had in past tense, and shall have or will have in future tense. यही है ना, has have in present tense, had in past tense, shall have or will have in future tense. यही है ना। तो हम उसको देखो यहाँ पे कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्लास प्रेजेंट टेंस में अगर हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है then what would be our construction? Subject class has या have plus V3 plus object. सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होगा ना, यही होगा या कुछ और होगा? कुछ और तो नहीं होगा?
कुछ और तो नहीं होगा, वेरी गुड, कुछ और नहीं होगा, ये सब्जेक्ट प्लस एज प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट। आई के बाद क्या होता है, I have gone to school, we have gone to school, you have gone to school, he has होता है ना, he has gone to school, they have gone to school, ठीक है। चलो do it first। Give me 1 minute। डन, एवरीवन ऑल हैव कॉपीड, सारे लोगों ने कॉपी कर लिया, एवरीवन डिड इट। Everyone did it? Very good. Where is this Madhur Gupta? वंश शर्मा, मधुर गुप्ता, लक्ष्य शर्मा, हर्ष शर्मा, प्रांजल शर्मा, कोई नहीं है, ये लोग पक्का सो रहे हैं। चलो, सो नाउ past perfect, very simple. What is the form of have verb in past tense is had, so subject plus had plus VP plus object, okay? Subject plus had plus VP plus object, so I had gone to school, we had gone to school, you had gone to school, he had gone to school, they had gone to school, ठीक है। ओके वंश, where is this Mahir Bhatt, जेसिका सिंह, नीलांशु रंजन, ऐश्वर्या शर्मा, हर्ष शर्मा, आप लोग क्लास में हो भी या लॉगिन करके गायब हो गए? डन, नाउ फ्यूचर, ठीक है। दिस इज कॉपीड, दिस इज कॉपीड, कुछ लोगों का नहीं हुआ, जल्दी डू इट फर्स्ट। डन, गुड, चलो, सो नाउ इट इज फ्यूचर। What is the form of have verb in future tense? Shall have or will have. You know that. Okay, shall have or will have. So
shall have या will ना, I के बाद क्या लगता है? shall, I shall have gone to school. We shall have gone to school. You will have gone to school. He will have gone to school. They will have gone to school. ठीक है? अक्षित चड़ल, लीलांशु रंजन, नमन गुप्ता, done, done. Shall I grab it? Done all? Shall I grab it? Good. Puler, Sarabjit, done or not? Good. Shall I rub it? Shall I rub it? Okay. I am rubbing this. Now, perfect continuous tense. Perfect continuous tense. Now, what we will do? We will amalgam both perfect and continuous. What was the base construction for perfect tense? Who will tell me? Type it down. Type it down. What is the base construction for perfect tense? Just now you did. Perfect tense का base construction क्या है? कोई भी सेंटेंस परफेक्ट में अगर लिखना है, कोई भी सेंटेंस अगर परफेक्ट में लिखना है, कंस्ट्रक्शन क्या है उसके लिए? कृतिका करेक्ट, कृतिका वेरी गुड, करेक्ट. अकुल ऑल्सो करेक्ट. नहीं बेटा अक्षित, ये तो सिर्फ प्रेजेंट टेंस का हो गया ना. बेस कंस्ट्रक्शन आई एम आस्किंग, नॉट अबाउट द टेंस. इट कैन बी प्रेजेंट, इट कैन बी पास्ट, इट कैन बी फ्यूचर. बैनर्जी, ये बीन कहां से आ गई? Where is Banerjee? Where is this? थोड़ा सा किसी को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बहुत अच्छे से समझो. बिन अभी तक हम लोगों ने लगाए नहीं, ठीक है ना. सब्जेक्ट, उसके बाद
हैव वर्ब लगाए, उसके बाद V3 लगाए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाए। तो परफेक्ट का कंस्ट्रक्शन क्या है? Where are the people left? We never say continuous perfect, right? We say perfect continuous. We say perfect continuous. Yes or no? Continuous perfect बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? Continuous perfect बोलते हैं। ठीक है? तो फिर perfect का कंस्ट्रक्शन क्या था? S plus have plus V3 plus object, right? ये perfect का था। क्योंकि perfect पहले आते हैं तो फिर हम लोग perfect का लिए पहले लिखेंगे। Next, what we will write? The base construction for continuous. What is the base construction for continuous? Base construction for continuous. बताओ बताओ। S plus करेक्ट, अक्षित करेक्ट, केशव करेक्ट, आकृति करेक्ट, अकुल करेक्ट। बेटा V4 अवॉइड करो। V4 हम लोग नॉर्मली नहीं बोलते, V प्लस ing बोलो। V4 इज नॉट रॉन्ग पर स्टिल अवॉइड करते हैं हम लोग उसको। फिर कोई एक हैव बीन आ गया, लक्ष्य शर्मा। लक्ष्य शर्मा हैव बीन कहां से आ गया आपका? आप कहीं बुक खोल के बैठे हो और उससे देख के आपने लिख दिया। व्हाट डिड आई आस्क? I asked what is the base construction for continuous, not present continuous, past continuous or future continuous. Once सिर्फ बी वर्ब लिख दो, is, am, are, was, was, shall be, will be लिखने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ बी वर्ब लिख दो, है ना? सभ्यता S प्लस बी प्लस बी, आगे कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं। आकृति करेक्ट, कृति का करेक्ट। बहुत सिंपल सा चीज है। S प्लस B प्लस B प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। अब हम लोगों को क्या करना है? ये दोनों को हम अमलगम करेंगे, ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे टू गेट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस की कंस्ट्रक्शन पाने के लिए हमें क्या करना है? बेटा लुक एट द क्लास, क्लास में देखो। आई कैन सी यू पीपल, राइट? इस दोनों को हम लोगों को जोड़ना है। व्हाट इज आवर बेस कंस्ट्रक्शन? बहुत अच्छे से आई वांट 100% अटेंशन टू द बोर्ड। until and unless you will put your attention over there you cannot understand. Let me make it very clear. ये समझने के लिए आपको पूरा अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, कैसे हम इन दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, हमारे लिए बेस कंस्ट्रक्शन क्या है? ये है सब्जेक्ट हमने ले लिया, वर्ब हमने ले लिया और ऑब्जेक्ट हमने ले लिया। ठीक है, नाउ what we say perfect continuous. So perfect comes first and continuous comes second. Perfect comes first and continuous comes second. So what is the rule to write any sentence in perfect? You have written that to write any sentence in perfect you need to use any form of have verb, right? मृदुला, ये कैसे आ रहे हैं हम लोग उसी को कर रहे हैं। ठीक है ना, हम उसी को सीख रहे हैं कि आते कैसे हैं। रट तो कोई भी सकता है, you can easily mug it up, but why? Until and unless you will ask this why, आपको समझ में नहीं आएगा। ये why सीख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें have लगा देंगे। ठीक है ना, अब हमें थोड़ा सा ज्यादा जगह चाहिए। नेक्स्ट हमें क्या पता है कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस। परफेक्ट के लिए हमने ऑक्सिलरी क्या लगा दिया? हैव लगा दिया। कंटिन्यूअस का ऑक्सिलरी क्या है? कंटिन्यूअस का ऑक्सिलरी क्या है? शिवांश, शिवांश हाय।
शिवांश हाय, नींद आ रही है? नहीं ना? गुड। कंटिन्यूअस के लिए क्या है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। तो हमें क्या करना है? बी भी लगाना है। अब हमारा रूल क्या बोलते हैं? इफ अ वर्ब यहाँ पे कौन है? बी। इफ अ वर्ब इज प्रीसीडेड विद एनी फॉर्म ऑफ हैव वर्ब, इफ अ वर्ब इज प्रीसीडेड विद एनी फॉर्म ऑफ हैव वर्ब इट चेंजेस इनटू इट्स थर्ड फॉर्म। यस और नो? ये इसके थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, है ना? तो फिर थर्ड फॉर्म इसका क्या है? बी का थर्ड फॉर्म क्या है? बिन है। बी का थर्ड फॉर्म बिन है। यस और नो? बी का थर्ड फॉर्म बिन है। क्यों बिन हुआ? क्योंकि इसके आगे हमने हैव लगाया। उसके बाद कंटिन्यूअस का रूल, कंटिन्यूअस का नंबर 4 वाले रूल पे क्या लिखा हुआ है? इफ अ वर्ब इज प्रीसीडेड विद एनी फॉर्म ऑफ बी वर्ब then ing to be added after the main verb। यहाँ पे main verb हमारे लिए तो यही है, ing to be added after the main verb। yes or no? yes or no? आया समझ में? अब ये कहां से आता है? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्यों किया हम लोगों ने? समझ में आया आपको? सबको आया समझ में? वेरी गुड। रिपीट करो, किसी को चाहिए? एनीवन वांट्स? किसी को समझ में नहीं आया? यू मे आस्क मी, आई कैन रिपीट। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। देखो व्हाट आई से, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग, यू नो। हम लोग बहुत कॉमनली बोलते हैं इंग्लिश में, आई विल रिपीट अगेन। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते? आई विल रिपीट अगेन। ये एक फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है ना? टोटोलॉजी बोलते हैं उसको, जहां पे हम लोग थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसिस करने के लिए ना गलत बोलते हैं। आई विल टेल यू अगेन इज आई विल रिपीट, आई विल टेल अगेन इज आई विल रिपीट। यस और नो? रिपीट अगेन क्या होता है? होता है क्या कुछ? रिपीट अगेन को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? कोई चीज अगेन बोलना ही तो रिपीट करना होता है, पर हम लोग हमारे बोलने में ना बोल जाते हैं ऐसे चीजें, एंड दिस इज ग्रामेटिकल एरर। ओके चलो कम बैक ओवर देयर। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सबको समझ में आ गया? इज देयर एनीवन हु कुड नॉट अंडरस्टैंड? देन आई विल रिपीट वन मोर टाइम। इज देयर एनीवन हु कुड नॉट अंडरस्टैंड? देन आई विल रिपीट वन मोर टाइम। अगर किसी को समझ में नहीं आया आप पूछो, मैं एक बार दोबारा बताऊंगा। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब नाउ लुक, हमारे पास 1 2 3 तीन वर्ब है ना? कितने वर्ब्स हैं? तीन वर्ब्स हैं। हमें क्या पता है? टू चेंज एनी। प्रांजल शर्मा, फ्रॉम वेयर डिड यू कम? कहां से आ गए? आप थे नहीं, मुस्कुराने से कोई फायदा नहीं है, आप क्लास में थे नहीं। आई अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। देखो मुस्कुरा रहे हो, योर स्माइल इज सेइंग एवरीथिंग। अच्छा, नो इशू नो इशू, इट हैपेंस इट हैपेंस। लुक मुझे आपके शक्ल देख के समझ में आ गया, नो इशू बेटा, यू विल गेट ऑल दिस रिकॉर्डिंग ओवर देयर इन YouTube, ठीक है? उसके बाद भी अगर आपको कोई समझ में कुछ नहीं आता है, ऐसे भी समझ में नहीं आता है, आप पूछ लेना दोबारा, आई विल रिपीट, क्लियर? उसके लिए बिल्कुल मत सोचो। सो सब्जेक्ट के बाद ये पे हैव है एक, बीन है दो, ये पे हमारा मेन वर्ब तीन है। तीन वर्ब्स हैं, ठीक है? सो which particular verb needs to be changed to change the tense? कौन सा वाला वर्ब हमें चेंज करना है टेंस चेंज करने के लिए? अक्षित करेक्ट, अकुल करेक्ट, बैनर्जी, योगिता करेक्ट,
आकृति करेक्ट, अक्षत करेक्ट, वेरी गुड, मोर ऑफ यू, सॉरी मोस्ट ऑफ यू गेव द करेक्ट आंसर। सब लोगों ने बोला हैव को चेंज करना है। क्यों करना है? देखो आप लोगों को अब कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमें टेंस चेंज करना है तो फाइनाइट वर्ब चेंज करना है। फाइनाइट वर्ब कौन सा है? जो सब्जेक्ट के इमीडिएट आफ्टर आता है। सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद कौन आ रहा है? हैव आ रहा है। तो फिर हमें बी को भी नहीं छेड़ना है, इस वर्ब को भी नहीं छेड़ना है, इस आईएनजी को भी नहीं छेड़ना है। हमें बस छेड़ना है किसको? छेड़ना है, कुछ छेड़ना तो है ही। चेंज किसको करना है? ये हैव को चेंज करना है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हैव का फॉर्म क्या है? हैज हैव, एंड पास्ट टेंस में हैव का फॉर्म क्या है? हैड है। फ्यूचर टेंस में हैव का फॉर्म क्या है? शैल हैव है या विल हैव है। तो फिर हम लोग प्रेजेंट टेंस में बनाने के लिए हम इसको हैज हैव लिखेंगे, पास्ट में लिखने के लिए हैड लिखेंगे, फ्यूचर में लिखने के लिए शैल हैव विल हैव लिखेंगे। ठीक है, आप सारे अपने आप से कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं। पूरी फ्यूचर वाले जो सेल्स हैं उसको भर सकते हो आप अपने से। कैन यू डू इट योरसेल्फ? आप क्या अपने से कर सकते हो? अक्षित कर सकता है, मधुर भी कर सकता है, बैनर्जी भी कर सकती है, अकूल, अरे वाह सारे अच्छे बच्चे हैं भाई। ऐसा कोई है जो नहीं कर सकता है? जो नहीं कर सकता है? चलो कोई बात नहीं है, आप सारे लोग कर सकते हो। तो फिर आप कर लो। जस्ट आई एम टेलिंग यू टू चेक वेदर यू डिड इट करेक्ट और नॉट। ठीक है ना? व्हाट वुड बी द कंस्ट्रक्शन फॉर प्रेजेंट perfect continuous tense? The construction, the last line with star that you people were writing, over there you need to write subject plus has or have plus been plus verb plus ing plus object. Subject plus has or have plus been plus verb plus ing plus object. ठीक है, that would be the construction for present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense का construction क्या होगा? subject plus has have plus been plus verb plus ing plus object. तो फिर हम लोग अगर उसको सेंटेंस में लिखेंगे तो फिर क्या होगा? I have been going to school. I have been going to school. बेटा क्वेश्चंस पूरे इसके टेस्ट लेंगे मानव ज्योत। अब मानव ज्योत समझ में आ गया ना? क्वेश्चंस नहीं, एक आध नहीं, ये टॉपिक जैसे कंप्लीट होगा यू नीड टू गिव टेस्ट, है ना? आपको टेस्ट देना है इसका कि आप लोगों को सीखने में मतलब सीख पाए कि नहीं पाए। समझ में आ गया मानव ज्योत? मानव ज्योत आ गया समझ में? पहले टॉपिक कंप्लीट तो हो जाए। ये टॉपिक जैसे कंप्लीट हो जाएगा ना, इसके बाद हम इसकी यूजिंग पढ़ाएंगे और आफ्टर दैट ये पूरी टेंस का एक प्रॉपर टेस्ट बना के मैं आपको दूंगा। ठीक है, देन आई विल अंडरस्टैंड कि आपको कितना समझ में आया है। ओके, बेटा मेरा आवाज क्लियरली सबको समझ में आ रहा है? Am I audible clearly? आवाज सबको क्लियरली आ रहा है? आवाज क्लियरली आ रहा है? हाँ, आवाज क्लियरली आ रहा है? आई थिंक मधुर आप अपने सिस्टम का ना साउंड पूरी ऑफ कर दो। शायद आपका इन कॉल वॉल्यूम जो है ना वो बढ़ा हुआ है, इसीलिए कुछ दिक्कत होगा। चलो कोई नहीं। तो आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल, यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल, he has been going to school, they have been going to school। ठीक है, डन। नेक्स्ट पास्ट में क्या होंगे? इसके बदले में बस हैड हो जाएगा। व्हाट वुड बी द कंस्ट्रक्शन फॉर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कैसे होंगे? आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल, वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल, यू हैड बीन गोइंग टू स्कूल, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल, दे हैड बीन गोइंग टू स्कूल। ठीक है, सब लोगों ने लिख लिया आई होप? सरबजीत बेटा इको तो थोड़ा सा होगा, ये पूरी खाली क्लास में आप सब लोग जब सामने बैठे रहेंगे ना तभी को नहीं होगा। खाली क्लास में मैं अकेला बोल रहा हूँ ना तो आवाज थोड़ा सा गूंजेगा।
डन। फ्यूचर में आपके बगैर क्या लगता है, shall have या will have, then what would be the construction? Subject plus shall have or will have plus be plus verb plus ing plus subject. Subject shall have or will have, been plus verb plus ing plus object. So I shall have been going to school, we shall have been going to school, you will have been going to school, he will have been going to school, they will have been going to school. ठीक है, ये मैं बता दूं, ये सिर्फ एफर्मेटिव एक्टिव हुआ है। हर ऐसे सेंटेंस का एफर्मेटिव के बाद नेगेटिव होता है, उसके बाद इंटरोगेटिव होता है, और हर किसी का एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है। अभी आप लोगों को कितने सेंटेंसेस मिले टोटल? 5 × 12 60 मिले हैं। इसकी नेगेटिव और 60 हो जाएगा, इसके इंटरोगेटिव और 60 हो जाएगा। वो तो आपको खुद को फॉर्म करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आपको आती है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आपको आते हैं कि नहीं आते? सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं? एफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से एफर्मेटिव, एफर्मेटिव से इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव से एफर्मेटिव। गुड, आपको आते हैं ना? ऐसे आप घर में बैठ के क्या करेंगे, ये जो आपने चार्ट आपको मिल गया ना, इसको हर एक सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर आपके लिए क्या होगा, उसके बाहर नॉर्मली कोई सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, आप जब लिखेंगे ना तब नॉर्मली आप देखना लोग ऐसे बोलते हैं, he has came, he has came। आपको पता चल गया ऑलरेडी कि हैज के बाद केम नहीं होता है, हैज के बाद कम होगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगेगा। कम, केम, कम, ऐसा होता है। ऐसे बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। अभी आपको थोड़ा सा ये लग रहा है इतनी लंबी चौड़े थोड़ा बोरिंग सी चीज है, ये जो है ना ये नींव है, दिस इज द बेस। ये अगर आपने एक बार सीख गया, आपको सेंटेंस फॉर्म करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सो जस्ट होल्ड योर नोटबुक, आई एम टेलिंग यू ऑल द सेंटेंसेस फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, आप एक बार चेक करो, अगर गलती है उसको अभी सुधार लो। ठीक है, फर्स्ट वन, S plus B plus O, subject plus verb plus object. I go to school, we go to school, you go to school, he goes to school, they go to school. Past tense में subject plus V2 plus object. I went to school, we went to school, you went to school, he went to school, they went to school. Future में subject plus shall or will plus verb plus object. I shall go to school, we shall go to school, you will go to school, he will go to school, they will go to school. उसके बाद continuous में आ जाते हैं subject plus प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस am is प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, I am going to school, we are going to school, you are going to school, he is going to school, they are going to school। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस was verb प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। दैट इज I was going to school, you were going, sorry, we were going to school, you were going to school, he was going to school, they were going to school। ठीक है, नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस शैल बी और विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। I shall be going to school, we shall be going to school, you will be going to school, he will be going to school, they will be going to school। उसके बाद परफेक्ट टेंस में आ गया सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब थ्री, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वी प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। I have gone to school, we have gone to school, you have gone to school, he has gone to school, they have gone to school। ठीक है, उसके बाद पास्ट टेंस में आ जाओ, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट, gone to school, you had gone to school, he had gone to school, they had gone to school। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में आ जाएंगे सब्जेक्ट प्लस shall have और will have प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट। I shall have gone to school, we shall have gone to school, you will have gone to school, he will have gone to school, they will have gone to school। ठीक है ना, उसके बाद क्या आते हैं, परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, I have been going to school, we have been going to school, you have been going to school, he has been going to school, they have been going to school। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। I had been going to school, we had been going to school, he had been going to school। छूट गया कुछ? You छूट गया शायद।
You had been going to school, they had been going to school. The last one is future perfect continuous tense. That subject plus shall have or will have plus been plus verb plus ing plus object. I shall have been going to school, we shall have been going to school, you will have been going to school, he will have been going to school, they will have been going to school. ठीक है, ये आपका पूरा बन गया सारे लोगों का। ये आपके पास आ गया, बन गया। देखो जिसके पास नहीं है उसको नोट्स की जरूरत पड़ेगी, और जिसके पास है मतलब यहाँ पे है, सिर्फ नोटबुक में नहीं। ये पूरे चीजों में अगर आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन में इतना सा भी डाउट है, यू मे आस्क मी। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप पूछिए। कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। कोई डाउट नहीं? क्या बात है। You will making me happy, you know? मुझे अच्छा लग रहा है आप जैसे बच्चों को पढ़ाते हुए। किसी को कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। या सरबजीत, करेक्ट। So we will wind up here. पूरे कंस्ट्रक्शन आपका टेंस का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग यूज पढ़ेंगे, और यूज हम तभी पढ़ सकते हैं जब हमें कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी तरीके से आता हो। अगर हमें कंस्ट्रक्शन नहीं आता है तो फिर हम यूज नहीं कर सकते। समझ में आ गया सर? तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में यूज पढ़ेंगे, और उसके बाद हम टेस्ट लेंगे टेंस का। पर यूज बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ आपको समझना है, ठीक है ना? कितने लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोग ही हैं, बाकी लोग गायब हैं। लखविंदर सिंह, लखविंदर समझ में आया? गुड गुड गुड, वेरी गुड। Who's that? She overnight. You understood or not? समझ में आ गया ना? वेरी गुड। बाकी ऐसा कोई नहीं है, सब लोगों को समझ में आ गया। तो shall we? Done? चलो, thank you to all. Okay, thank you very much. Good.